کہ بے شک مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے جامع مسجد کے مسلے پہ بیٹھ کر جامع مسجد کے ممبر سے جو کچھ کہا ہے، بالکل مدنی نے جو کچھ کیا جمعیت کے کاج سے، جمعیت کے پلیٹ فارم سے، آپ ان کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مولانا محمود مدنی پر آپ کو تنقید کرنے کا کوئی حق۔ دوستو اس وقت اتنا برا ہو چکا ہے، اتنا برا چل رہا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، کیونکہ بتانا تو پڑے گا آپ لوگوں کو۔ اگر نہیں بتاؤں گا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا، معلوم کیسے ہوگا آپ لوگوں کے درمیان۔ دوستو اس وقت برا یہ چل رہا ہے کہ مہاراشٹرا میں ابھی اس وقت سیاسی ماحول گرما گرم ہے، اور مہاراشٹرا کے مالیگاؤں سے AIM پارٹی سے مولانا مفتی اسماعیل صاحب وہاں سے ودھایک ہے، اور ان کی ورودھ میں مولانا محمود مدنی کے چاہنے والوں نے ایسے لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں مفتی اسماعیل صاحب کے خلاف، ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ سب کے سب صرف راجنیتی کے کرسی کو قائم کرنے کے لیے یہ سب لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ مولانا محمود مدنی کے چاہنے والے چاہتے ہیں مالیگاؤں سے مفتی اسماعیل صاحب ہارے، کیونکہ مولانا محمود مدنی کے پارٹی سے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا ہے وہاں سے۔ جب علماء کرام آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے پر وار کریں گے، تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ تو دوسرے لوگ بھی کہیں گے AIM پارٹی BJP کی B ٹیم ہے۔ جب آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں تو دوسرے لوگ کہیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن خیر چھوڑیے، آئیے دیکھتے ہیں مولانا مفتی اسماعیل صاحب کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں مولانا محمود مدنی کے چاہنے والے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ کا مذہبی لیڈر حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس بندوق ہے، میرے پاس سروس والا ریوالور ہے، میرے پاس لائسنس والا ریوالور ہے، اور میرا نشان بہت پکا ہے۔ اولمپک میں جاؤ نا، الیکشن میں کیا کرنے آئے؟ یہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اگر ہمارے پاس اسلحہ ہے تو اخلاقی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس اسلحے کا کسی کو دھمکی نہ سکتے۔ آپ اس طریقے سے دھمکی نہیں دے سکتے۔ سید مسلم نے کہا نا کہ بہت دور کی بات ہے، مسلم بھیا وہ کان کے پاس سے بھی گولی نہیں جائیں گی، 10-20 فٹ دور سے جائیں گی، نشانہ وسانہ پکا نہیں ہے، یہ والا پکا نہیں ہے، دوسرا نشانہ پکا ہے۔ ہاں وہ کون سا نشانہ پکا ہے؟ اس کے ماسٹر اور PhD ہمارے علیم بھائی ہے، علیم صدیقی صاحب سے پونا گھنٹے کا لیکچر سننا، وہ بتائیں گے وہ نشانے کے بارے میں، بہت اچھے لیکچر آ رہے ہیں اس معاملے میں۔ تو یہ حالات ہے اس شہر کے اندر، برادری واد میں ہم لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلک کے نام پر ہم لوگوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی تقریر جب میں نے قلعے کی سنا تو پوری زہریلی تقریر میں وہ پورے شہر کے اندر نفرت کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، لوگوں کو، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا ہے کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم مرآۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، الناس کاشنان المشتی، تمام لوگ کنگھی کے دانے کے برابر ہیں، کوئی بھی دانہ ٹوٹ جائے گا کنگھی بدنما ہو جائے گی، یہ ہمارے نبی کا قول ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، نفرت کے ساتھ ہمارے لیڈر کا نام لے کے کہتے ہیں تاکہ ان کے ماننے والے ہم سے نفرت کریں، نفرت کی بنیاد پر لوگ ان سے محبت کر کے اوڑ دیں گے۔ انتہائی زہریلے انداز میں پورے شہر کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انصاری اوڑ میری ہے، فلانی اوڑ اس کی ہے، یہ سب بولنے کا ادھیکار مفتی صاحب آپ کو کسی ہندوستانی قانون، ہندوستانی آئین نے نہیں دیا ہے۔ اس شہر کا ہر باشندہ آزاد ہے، وہ جسے چاہے گا اس کو اوڑ دے گا، کوئی اوڑ کسی کی جاگیر نہیں ہے، آپ یہ بات یاد رکھنا۔ ہندوستانی آئین نے ہمیں حق دیا ہے کہ جب اوٹ دینے کے لیے ہم جائیں گے تو وہاں ہم تنہا رہیں گے، ہمارا خدا رہے گا، اور وہاں پر ہم اوٹ کے نام پر شہادت دیں گے کہ اللہ یہ قائد ہے جو مخلصانہ طور پہ کام کر سکتا ہے۔ آپ چن کے آئے اور اس کے بعد لاک ڈاؤن نے آپ کی کلئی کھول دی۔ لاک ڈاؤن کا سورج طلوع ہوا تو ہمارے ایم ایل اے صاحب موم کے سپاہی ثابت ہوئے، گھل گئے، وہیں پر ختم ہو گئے، کچھ نہیں کیا انہوں نے لاک ڈاؤن میں،
क्वारंटाइन हो गए। हजारों बातें, लाखों बातें, सैकड़ों मिसालें ऐसी बन गई कि कोई भी इंसान वक्त पड़ने पर, तोता भी तो देर से आंखें फेरता है, हमारे लीडर ने उससे भी कम वक्त में शहर की तरफ से आंखें फेर ली थी। शहर को गुनहगार बनाने के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। जातियात पर बात कर रहे हैं मस्जिद के मिंबर से, कुरान पाक के सामने जामे मस्जिद के मसल्ले पर बैठकर जातियात पर बात कर रहे हैं। ये बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या ये कुरान की तौहीन नहीं है? क्या ये जामे मस्जिद की तौहीन नहीं है? क्या ये जामे मस्जिद के मसल्ले की तौहीन नहीं है? हर इंसान का अलग अलग खाना होता है काम करने का। मैं भी जमीयत उलमा सुलेमानी चौक का नायब सदर हूं, मगर जब मैं जमीयत के प्लेटफॉर्म पर होता हूं, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी वहां पर उस प्लेटफॉर्म पे सियासत नहीं की। कभी मैंने अपना सियासी नजरिया जमीयत के प्लेटफॉर्म से किसी अपने बाजू में बैठे हुए साथी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं की। जमीयत के दफ्तर में कोई भी सियासी लीडर आता है तो बहैसियत नायब सदर मैं उसका इस्तेकबाल करता हूं। मैंने कभी वहां पर अपनी सियासी दुकान और सियासत चमकाने की कोशिश नहीं की। अभी पिछले दिनों सुलेमानी चौक में, सुलेमानी मस्जिद में वक्फ के ताल्लुक से इजलास चल रहा था। मेरे हाथ में माइक था, सोलार के बारे में किसी ने सवाल किया तो मैंने माजरत कर ली और जवाब नहीं दिया। मैंने दे सकता था जवाब। यह मंच दूसरा है, यह प्लेटफॉर्म दूसरा है। मेरी अखलाकी अकदार ये कहती हैं कि मैं अपनी हर चीज को अलग अलग रखूं। इमाम की जगह पर इमाम रहो, आलिम की जगह पर आलिम रहो, मुफ्ती की जगह पर मुफ्ती रहो, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, और सियासी लीडर की जगह सियासी लीडर रहो। हर चीज को घाल मेल करने की जरूरत नहीं है, इसकी इजाजत शरीयत भी नहीं देती। वहां से कह रहे हैं बोले जुम्मा को सब जलसे में आना, मुसल्ले पे बैठ के बोल रहे, बोले नानी का दूध याद दिला दे। मुसल्ले पे बैठ के बोल, अरे मैं क्या बोलूं अब यार इसके बारे में। मौलाना महमूद मदनी पर तनकीद किया। जमीयत के यूनिट है जो पूरे मुल्क के अंदर 80% यूनिटों के सदर मौलाना महमूद मदनी है, पूरे मुल्क के सदर जमीयत उलमा हिंद, और उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। एक तरफ जमीयत में, जामे मस्जिद में, और दूसरी तरफ जमीयत की हिमायत में और जमीयत की अफादियत में जलसा ले रहे हैं। इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि करना क्या चाहते हैं मोहतरम। इतना खौफ है, इतना डर है। हमारे लीडर को देखो अपने बलबूते पर, आपकी मोहब्बत में कसौटी पर आया और यहां पर अंसार जमात खाने का ग्राउंड भर दिया। आप भी आओ मैदान में, मर्द के जैसे आओ और मर्द के जैसे सियासत करो। ये क्या जमीयत की आड़ में छुपकर लोगों का मजहबी इस्तेहसाल कर रहे हैं? आओ ना मर्द की जैसे सियासत करने। ये मेरा लीडर है, कसौटी पे उतरा, अंसार जमात खाने में पैगाम दिया नौजवानों को कि आओ। ये अंसार जमात खाने का ग्राउंड भर गया। आपको जरूरत क्यों पड़ रही, इतना खौफ क्यों है? खालिद हाजी एक आम इंसान है यार, सादा बंदा है, वो एक आम इंसान है। वो बेचारा कभी किसी को कोई चीज ऐसी टेढ़ी बेढ़ी करता नहीं ना, बोल उसके पीछे पड़ गया। कमाल है, इतना डर रहा है उससे, इतना खौफजदा हो रहे खालिद हाजी से। अरे भाई इतने खौफजदा मत बनो। आप 5 साल थे ना, एमएलए हो ना, और आपने काम किया है ना। आओ ना मैदान में आओ, काम की बुनियाद पे बात करो, तामीर की बुनियाद पे बात करो ना, मर्द की जगह सियासत करो ना। जमीयत उलमा की आड़ में छुपकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हो। तंजीम आइम्मा और हुफ्फाज ने खत लिखा है, खत आसिफ साहब ने खत लिखा था, जवाब आया है कि बेशक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जामे मस्जिद के मसल्ले पर बैठकर जामे मस्जिद के मिंबर से जो कुछ कहा है, बिल्कुल वो एक आलिमाना शान के खिलाफ है, आलिमाना विकार के खिलाफ है। यह फैसला शहर के उलमा ने दिया है, शहर के आइम्मा ने यह फैसला दिया है कि हमारे लीडर की सच्चाई है। तो मस्जिद में बैठ के तंबीह दी जा रही है, मस्जिद में बैठ के रुसवा हो रहे हो, और हमारे लीडर को मस्जिद में बुलाकर इस्तेकबाल किया जा रहा है। आ जाओ मैदान में। मेरे कने चक्कू है,
कमाल है यार दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा शौक असलहा है तो बराबर अपने वास्ते रिवॉल्वर के लिए अरीजा किया और उसके बाद सब कुछ डिस्ट्रक्शन करवाया, रिवॉल्वर खरीद के अपना शौक पूरा कर लिया। शहर के वास्ते क्या किया ये तो बताओ। कौन तुमको गर्दन काटने आ रहा था? तुम्हारे ऊपर कितना कातलाना हमला हुआ? क्या जरूरत थी तुम्हें असलहे की? गुंडे हम हैं, गुंडे हम हैं ये बोलते हैं वो, और असला इनके पास है, बंदूक लाइसेंस वाली उनके पास है, और गुंडे हमें मशहूर कर रहे हैं। अरे हमारा लीडर तो वो है जिसने किसी को एक धक्का नहीं मारा, किसी को एक तमाचा नहीं मारा, किसी को गाली नहीं दी, वो हमारा लीडर है। और आपने हमारे आमिर मलिक को गाली दी है, उसका ऑडियो मौजूद है। हमारे लीडर का ऑडियो मौजूद नहीं है, गाली देने का, धमकी देने का ऑडियो नहीं है हमारे लीडर का। तो गुंडा कौन है ये शहर तय करेगा, शहर फैसला करेगा कि गुंडा कौन है। जमशेद को भी दम दिए थे, कुरान की तौहीन, मस्जिद की तौहीन, ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी तो इतने डरे हुए दोस्तों कि मैं समझता 90-94 सीट है कारपोरेशन में, 200 सीट का टिकट बांट दिए, 200 टिकट फाइनल हो गया। हमारा सफीक बॉक्सर बोलता है, बोले एक पेंसिल दूर अब्बल, बोले उनके पास एक पेंसिल है दूर अब्बल है, कोई का मालूम नहीं है। इधर एक फाइनल करा दिन, उधर होगा मिटावा दिन, एक पेंसिल दूर अब्बल, और 200 टिकट बढ़ गया, और पैसा भी एडवांस हो, क्या बोलते उसको, हाँ बोले टोकन, हाँ टोकन, बोले टोकन दे दे फिर बाद में देखेगा, कोई बोलना मत, थोड़ा पक्का है। इतना टोकन ले लिया है, इतना टोकन ले लिया है कि अभी टोकन में 200 लोग हो गए। हर शहर के वो लोग जो उनकी ओर से चुन के आना चाहते, उनको पता नहीं है कुछ। तो मौलाना महमूद मदनी साहब पर जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इल्जामात लगाए हैं, बोहतान बांधा है, मैं जमीयत का मशवरा नहीं है इसलिए वहां खामोश था, मगर यहां मैं आजाद हूं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के उस बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं, और एक आलिम दीन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने पर उनको मजम्मत का निशाना बनाते हुए इसकी मैं अपील करता हूं और उनको चैलेंज करता हूं कि आपको माफी मांगना है। आप माफी मांगो मौलाना महमूद मदनी के बयान के बारे में। हमारे लिए हमारे उलमा सब कुछ है, हमारे लिए हमारे कायद सब कुछ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ किया जमीयत के काज से, जमीयत के प्लेटफॉर्म से, आप उनके पांव के नाखून के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। मौलाना महमूद मदनी पर आपको तनकीद करने का कोई हक नहीं है। इसे रिकॉर्ड। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, जब तक हमें इजाज़त दीजिए एक दूसरे वीडियो के साथ।